Good afternoon, dear students. Today our topic is once again upon the citrus. As I have already completed two lectures upon citrus, and today's lecture will be about the types of citrus. As I have already told you that our topic is types. I have told you that there are three types of structure of citrus. Number one, paragraph citrus, sentence citrus, and word citrus. Or we can say syllable citrus. I have already told you that citruses are also of two types, that is primary and secondary citrus. But here whatever the rules we say, these are about the primary citrus, because secondary citrus is not in your syllabus. So we are dealing here with the primary citrus, and these are the three types of the primary citrus. As it is known to you about the paragraph, that paragraph is combination of the sentences, and in case of paragraph, as I told you that citrus means loudness of the sound. But we sound make the loud, prominent sound, important word in the paragraph. We have to make the prominent important words in the paragraph. For example, I have already given you the example. For example, I love or like you. There is this sentence, there is no doubt. But for example, it can be like a paragraph. I love you. I don't hate you. Whatever I do, that I do for you. I think that you should prosper in your life. So, my main motto is to help you. That is, it may be like a paragraph. And in that paragraph, for example, this is one sentence. And what we have to do, as I have already told you, that we have to give citrus upon the main word. I already told you that we give the citrus like this, primary citrus and secondary citrus like this, that is below, and primary citrus above, but we have to deal here with the primary citrus. That is, I told you that it will be like a paragraph, and in that paragraph I have taken this. And what I have to do, if my main citrus will be upon this I have to give citrus here. That is, if I want to say, if I make the word prominent I, for example, I like you. I like you. That is, I have given the citrus upon the I. That means only I like you. But how, you can say, sir, how we know that we have to give here citrus upon the I? For example, there may be the debate, or there may be the conversation or dialogue between two persons. One among you students will say me, sir, you hate us because you always take us our exam. Other teachers, they didn't take our exam daily. I will say, no, I don't hate you. I like you. That means only I like you. Those teachers who didn't take your exam, they didn't like you. At this time, at this age, you think that they like you. But in the future, you will see that they didn't like you. That is what I mean, that in the paragraph, you will come to conclusion that which is prominent word. For example, now, if you will say, sir, no, we think that you hate us. This is the reason that why you take our exam daily. I will say, no, this is not a reason. I like you, so I take your exam. That is, here I have to give citrus upon love or like. You can say, sir, why didn't you take the exam of other sections? That means you love them or you like them. I say, no, I don't like them. I like you.
So I take your exam more frequently. That is, I will give stress upon this you. That is this. In short, you have to remember that in case of paragraph stress, we give the stress upon the important word, upon the prominent word, upon the necessary word, upon the main word, which gives us the main message, which gives us the main information, which we want to make prominent. Okay, is it clear? Any doubt? Okay. Now another one is sentence stress. Sentence stress is also very necessary. It is very important according to examination of point of view, because in examination they didn't pose the questions from the paragraph. They ask the questions from this. They say you the questions from this sentence stress. You have to remember that sentence stress, there are only few rules for sentence stress which will be helpful for you. That is, the sentence stress is given upon the content words. Content, or you can say main words. It is not given upon the structural or grammatical words. It is not given upon the structural or grammatical words. It is only given upon the content words. That is, I will first of all explain which are content words. Please wait. Content words. Content words, I can say that they are the main words. For example, they are verbs, they are nouns, they are adjectives. That is, etc. That is, I can say that these are dictionary words which are found in the dictionary. These are the main words. These are the content words. These are the words. And other type is, that is structural or grammatical words. Structural or grammatical words. 1 second. Yes, structural or grammatical words. Grammatical words, they are for example articles, prepositions, conjunctions, which are used in the grammar. There we have not to give stress upon them. For example, they are, in case of structural words, there comes also pronouns. Pronouns also. Pronouns, prepositions, articles, conjunctions, and auxiliary verbs, that is helping verbs, is, am, are. These are not stressful. If there is a sentence, for example, there may be a sentence, and in that sentence, you have to give the stress. For stress, I already told you in the examination, they didn't pose you. There is this sentence stress you have to give, because they did not elaborate a very long paragraph. There will be the sentences. For example, I am teaching you. I am teaching you. You have to give stress not upon the I, because it is pronoun. I already told you, not upon the am, only upon the teaching. For example, I eat food. Here, not upon the I, only upon verb and upon noun. In short, you have to give the stress upon the main words or upon the content words
or upon the primary words, or we can say upon the dictionary words, that is upon the verbs, upon the nouns, upon the adjectives. But you have not to give stress upon the grammatical words, that is upon the prepositions, upon the articles, upon the modal auxiliaries, upon the helping verbs, even upon the pronouns. We have not to give stress upon the pronouns. These are some rules about this sentence stress. Now there are some rules which are about, which are about the syllable, or we can say word stress. We can say that there are some rules about word stress, but there are more rules about word stress. As you have seen that there are only few rules upon for this paragraph and for the sentence stress, but there are more rules for the word stress. They I will discuss. First of all, I have already told you that a word can be, a word is made up of the syllables, which I already told you. Syllables. I told you that we have to see that how many vowels are in the word. As many as vowels there are, there may be too much these syllables. यानी कि जितने वर्ड में वावल्स होंगे उतने उसमें सिलेबल्स होंगे. यानी कि वावल इज नेसेसरी फॉर, वावल साउंड इज नेसेसरी फॉर द सिलेबल. सिलेबल वी कैन से इट इज पार्ट ऑफ द वर्ड. तो मतलब हम ये वर्ड अब हमें वर्ड में सिलेबल पर देना होता है. मैंने आपको पहले भी कहा है सिलेबल्स कैन बी मोनोसिलेबिक, दे कैन बी डाइसिलेबिक, दे कैन बी पॉलीसिलेबिक. मानो आपको मालूम है अगर एक ही सिलेबल होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है पेन बुक, इसी तरह डाई मीन जहां दो सिलेबल होगी, मिसाल टीचर, मदर, पेंटा, एंड पॉली मीन जहां बहुत सारे हो गए, एग्जामिनेशन. यानी कि ये आपको मैंने पहले ही कहा है टाइप्स ऑफ सिलेबल्स. अब हमें वर्ड में सिलेबल पर स्ट्रेस देना होता है, यानी किस सिलेबल पर देंगे, कहां देंगे. मिसाल के लिए मैंने ये भी कहा है टीचर, आप टी पर देना है या चा पर देना है. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है अगर आपको ऐसा नहीं आएगा कि समझ में नहीं आएगा तो आप वो ट्रिक अप्लाई करें. टीचर, टीचर, यानी कि जब हम एक ऐसे साउंड ऐसे करते हैं तब तक हम एक सिलेबल प्रोड्यूस करते हैं. टीचर, मदर, एग्जामिनेशन, पेन, वेरी गुड वेरी गुड, पेन, टिप, निब. अब कोई कहेगा पेन नहीं, क्विकली करना है, कोई कहेगा टीचर नहीं. ये आपको देखना है कि इससे मिलाना है, मगर एक ट्रिक है, ये आपको मैंने पहले ही कहा है. अब कुछ रूल्स हैं. अगर मोनोसिलेबिक होगा, अगर वर्ड मोनोसिलेबिक होगा तो आपको मालूम है कि वहां पहले ही रखना है. मिसाल के लिए पेन है, पेन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन. यहां कुछ नहीं करना है, सीधे पेन पर डालना है, यहां सीधे पेन पर डालना है. अब अगर टीचर है, मदर है, फादर है, हमें वहां देखना है किस पर स्ट्रेस डालना है. उसके लिए कुछ रूल्स है, वही रूल्स आपको थोड़े याद रखने हैं. हाँ, रूल नंबर 1. अब डाइसिलेबिक के लिए, डाइसिलेबिक वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल. मिसाल के लिए एक्शन है, एप्पल है, आर्टिस्ट है, एटम है, जो ये डाइसिलेबिक वर्ड्स है इनको पहले ही हम स्ट्रेस देते हैं. यानी कि मिसाल के लिए एक्शन, इसमें दो है, एक और शन, इसमें स्ट्रेस हमें देना है ए पर. एप्पल, एप्पल में हमें ए पर ही स्ट्रेस देना है. एटम, आर्टिस्ट, बाबा, यहां हमें मतलब पहले ही पर देना है. इसी तरह मिसाल के लिए अब है कुछ, मिसाल के लिए यहां है डाइसिलेबिक स्ट्रेस ऑन सेकंड. मिसाल अबाउट, अबाउट, यहां बाउट पर देना है, अबाउट. मेरे कहने का मतलब ये है, 1 सेकंड. मिसाल के लिए अबाउट,
यहां बाउंड पर स्ट्रेस देना है, ए पर नहीं। इसी तरह मिसाल के लिए अबोव, यहां बी पर स्ट्रेस देना है। यानी कि अब उसके लिए आप कहेंगे सर आपने कैसे दिया है, हमें कौन कहेंगे, मैं आपको कहूंगा उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो वर्ड स्ट्रेस है उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, वही रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज वेट। हाँ, इसी तरह मिसाल के लिए, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है कि अगर डाइसल्फिनिक वाले होंगे, डाइसल्फिनिक वाले यानी कि जिसमें 2 सिलेबल होंगे, वो हम क्या करते हैं, यहां लिखा हुआ है देयर आर फ्यू डाइसल्फिनिक वर्ड्स व्हिच टेक स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, यानी कि उनमें हमें फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देना है। कहां फर्स्ट सिलेबल पर देना है? इफ द वर्ड इज यूज्ड एज ए नाउन, इफ द वर्ड इज एज ए नाउन और एडजेक्टिव। आपको मालूम है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स है, सेम वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज एडजेक्टिव। जब ऐसे वर्ड्स होंगे, अगर वो इस्तेमाल होंगे एज नाउन और एडजेक्टिव, तो उस वक्त हमें डाइसिलेबल में पहले ही सिलेबल पर स्ट्रेस देना है। समझ आ रहा है? ओके, मिसाल के लिए एडवांस, एड और वांस, फॉर एग्जाम्पल एडवांस, यहां हमें क्या क्या है, नाउन और वर्ब, हाँ नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। अगर एडवांस को हम एज नाउन और वर्ब लिखेंगे तो तब हम पहले पर देंगे नाउन और एडजेक्टिव, एक सेकंड, नाउन और एडजेक्टिव एंड ऑन सेकंड सिलेबल इफ दे आर यूज्ड वर्ब्स। हाँ, अगर एज वर्ब हम इसको आप कंसीडर करेंगे, मिसाल के लिए हम कहेंगे एडवांस, एडवांस एज वर्ब, तो वहां हमें सेकंड पर वानिस पर देना है स्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन है वर्ब है, या वहां लिखा हुआ होगा, वहां लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में ये नाउन है ये वर्ब है, या वहां ये सेंटेंस में होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मिसाल के लिए अलर्ट, इसी तरह एंगर, इसी तरह अवॉर्ड। हाँ, अब और एक रूल है, डाइसिलेबल वर्ड्स वी टेक द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल इफ यूज्ड एज नाउन और एडजेक्टिव एंड ऑन सेकंड इफ यूज्ड एज एडवर्ब। अब अगर एडवर्ब जो आपने मैंने पहले कहा, मिसाल अगर एब्सेंट एज हम एडजेक्टिव लेंगे तो ए पर, अगर इसको एब्सेंट को ही हम एज वर्ब लेंगे तो सेंट पर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एज नाउन लेंगे तो सी पर, अगर कॉन्ट्रैक्ट को एज वर्ब लेंगे तो टी पर। कन्वर्ट, कन्वर्ट सी अगर नाउन, अगर हम इसको वर्ब लेंगे तो वी पर। हाँ, प्लीज वेट। Because this is to some extent, I already told you that it has more rules. So I can say that the monosyllabic prefix given generally has the stress। यानी कि आपको मालूम है कभी कभी मोनोसिलेबलिक प्रीफिक्स होते हैं, मिसाल के लिए कभी प्रीफिक्स होते हैं किसी वर्ड के आगे होते हैं और वो मानो होता है, मोनोसिलेबल यानी कि एक ही सिलेबल उनमें होता है, तो वहां आपको क्या करना है, उसी पर स्ट्रेस देना है। मिसाल के लिए ए बी किसी जगह होता है, ए बी, मिसाल के लिए ए, 1 सेकेंड, मेरे कहने का मतलब है मिसाल के लिए किसी जगह ए बी जे ई सी टी एब्जेक्ट है, ये एब और जेक्ट, ये है एब और जेक्ट, एब्जेक्ट ये है इसका प्रीफिक्स
जक्ट का जहां जक्ट मेन वर्ड है, यहां इसका ये प्रीफिक्स है, और जो ये एब है ये तो खुद मोनोसिलेबल है, तो यहां हम इस वक्त हम ए बी पर ही स्ट्रेस देंगे। थोड़ा आपको ये मुश्किल मत होगा। इसी तरह मिसाल के लिए एडिक्ट, वहां भी हम एडी पर ही स्ट्रेस देंगे, ए पर ही। इसी तरह है एग्रीगेट, अल्कोहल, एप्लीकेंट, कंफर्ट, कंक्रीट, डेडिकेट, there you have to give stress upon the prefix which is made of monosyllable. Yes. Now there are some more rules. Words with weak prefix a, b, re and dis, ये आपको याद रखने हैं। क्या क्या? अब मैं ऐसे लिखूंगा a, ये मतलब जब प्रीफिक्स होगी यानी कि उनके आगे और कुछ होगा, a, b, मैंने यहां इसलिए लिखा है कि यहां और कुछ इसके अलावा है, A, B, re and dis। जब ये होंगे तो उस वक्त है द स्ट्रेस ऑन द रूट एंड नॉट ऑन द प्रीफिक्स। उस वक्त इन पर स्ट्रेस नहीं देना है, यानी कि इन पर स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस उस वक्त जो मेन वर्ड उसके साथ होगा उसी पर देना है। मिसाल के लिए ए बेड, मिसाल के लिए ए बेड, यहां हमें स्ट्रेस देना है बेड पर, ए पर नहीं। ये आपको याद रखना है, ए बी रे एंड डिस। जब ये होंगे पहले एज प्रीफिक्स तो उस वक्त इन पर स्ट्रेस, ये एक्सेप्शन है, उन पर स्ट्रेस नहीं देना है, स्ट्रेस मेन वर्ड पर देना है। अलाउड, एफा, बिलिटल, ब्लो, बिकम, यानी कि बी पर नहीं देना है, काम पर देना है। बिफ्रेंड, बी पर नहीं देना है, फ्रेंड पर देना है, एफ पर देना है। रिड्यूस, रिफ्यूज। ये कुछ रूल्स थे। मैंने कहा है आपको पहले ही कि यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं इसके। अब मैंने आपको मतलब इंपॉर्टेंट वंस यहाँ शो किए हैं। यहाँ और एक रूल है, रूल नंबर 3। वन सेकेंड। द डेरिवेशनल सफिक्सेस, अगर आप सफिक्स होंगे, सफिक्स यानी कि लास्ट पर, फॉर एग्जाम्पल सफिक्स होगा एज, इसी तरह सफिक्स होगा एनएस, ए एन सी, इसी तरह सफिक्स होगा एन, इसी तरह अगर सफिक्स होगा ई आर, और सफिक्स होगा ई डबल एस, और सफिक्स होगा, अब मैं यहां पर दिखाऊंगा एफ यू एल, फुल, ये सफिक्स लास्ट पर। यहां इसी तरह सफिक्स होगा हुड, इसी तरह अगर सफिक्स होगा इश, एटसेट्रा। इसी तरह मिसाल के लिए एव होगा, लेस होगा, ली होगा, मेंट होगा, नेस होगा, और होगा, शिप होगा। तो उस वक्त आपको याद रखना है कि यानी कि जिस वर्ड पर हमें स्ट्रेस देना है हमें उसी पर देना है, उन पर नहीं देना है। यानी कि इन पर हमें स्ट्रेस नहीं देना है, हमें मेन वर्ड पर देना है। मिसाल के लिए कवर, मिसाल के COVER, कवर एज, कवर एज, कवर एज, हमें यहां एज पर स्ट्रेस नहीं देना है, हमें सी पर देना है। मिसाल के लिए मेरी, मैरेज, हमें एज पर स्ट्रेस नहीं देना है, हमें एम पर देना है। इसी तरह एनाइनिस, इसी तरह ब्राइट, ब्राइटन, यानी कि बी पर देना है, एन पर नहीं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया है, आया है, कोई बात नहीं है। आई विल रिपीट वंस अगेन, ओके। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है वर्ड्स एंडिंग इन सफिक्स ION, अगर ION होगा लास्ट पर सफिक्स, या अगर IAL होगा यानी कि सफिक्स, या अगर IOUS होगा, IOUS यानी कि सफिक्स, या IAL होगा, या TION होगा। उस वक्त आपको याद रखना है, उस वक्त जब ये लास्ट पर होगी उस वक्त सेकंड, मतलब ये लगभग पॉलीसिलेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो पॉलीसिलेबल्स होगी, जो में दो से पहले पर भी नहीं देना है, उन पर भी नहीं देना है, उन पर नहीं देना है, जो सेकंड सिलेबल होगा उसी पर देना है। आपको समझ में आएगा। मैं जब आपको एग्जाम्पल कहूंगा, यानी कि मिसाल के लिए एम्बिशन, मिसाल के लिए एम्बिशन, AM
DITION, यहाँ है ION, जो मैंने यहाँ कहा है ION, एम्बिशन। यहाँ A पर नहीं देना है, क्षण पर नहीं देना है, यहाँ पर B पर देना है, एम्बिशन। इसी तरह कलेक्शन, यहाँ L पर देना है। इसी तरह डायरेक्शन, यहाँ R पर देना है। इसी तरह मोशन। तो ये आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में आए होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये क्या कहते हैं इसके सिट्रस के। मैंने आपको पहले ही कहा है कि थोड़ा कंपाउंड वर्ड्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है। हाँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। Still, if you have any doubt, you can make the message or you can write in the comments. If you have any doubt, I will try to clear that. I know that it is new to you. It may take time, but I once again say you that I have taught you this according to examination point of view, that how you will solve the paper. Otherwise, these are not rules. These are tricks. Okay, thank you. I hope that you will write the comments. Thank you.